आपका जो टॉपिक है वो चल रहा था प्राइमरी कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट मींस न्यू इश्यू मार्केट दैट इज नोन एज द primary market, means where the shares and debentures are to be firstly issued in a market that is known as primary market. Okay, what are the function of the primary market? First one is it is organizing, second one is it is underwriting, and third one is it is distribution. Okay, that are the 3 points of the functions of the primary market are. Okay, first one is it is organizing, means primary market it is organizing. First of all, the organizational process start before the issue is folded in the market. It is concerned with the activities like in investigations, analyzing and process of the new product. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है एक ऐसी प्रोसेस, ठीक है, starts before the issue is floated in the market. It is concerned with the activities like ऐसी activities जो कि जैसे investigation हो गया, analyzing हो गई, processing हो गई of a new product, that is known as organization. Okay, first functions of the primary market it is organization. Second mean one is underwriting. What do you mean by underwriting? अंडरराइटिंग मींस जो भी अंडरराइटर्स वर्क करते हैं इन द डीलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज दैट इज नोन एज अंडरराइटर्स. तो अंडरराइटिंग इज डन to ensure marketability of the securities. Underwriting agents, the underwriters promises to subscribe to a specific number of the shares and debentures of the specified amount of the stocks in the event of the public. ठीक है, अंडरराइटर्स का क्या वर्क होता है? अंडरराइटर्स वो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ, जैसे जो ब्रोकर्स होते हैं जिन्हें हम अंडरराइटर्स बोलते हैं, ठीक है, एक तरीके से हिंदी वर्ड होता है तो दलाल जो वर्क करते हैं, ठीक है। जो अंडरराइटर्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, मिडिल मैन होते हैं जो कि शेयर्स और डिबेंचर्स को सेल कराने में हेल्पफुल होते हैं, दैट इज नोन एज अंडरराइटर्स. ओके, उन्हीं को हम अंडरराइटर्स बोलते हैं. The main advantages of the underwriters are the main advantages of the underwriters are first one is distribution. अंडरराइटर्स का क्या वर्क होता है कि वो शेयर्स और डिबेंचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है. The main advantages of the underwriters are issue companies ensured of the sale of the securities and receipt of the minimum subscription. अंडरराइटर्स जो होते हैं वो एक तरीके से कंपनसेशन वर्क पे या फिर कमीशन बेसिस पे वर्क करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने किसी कंपनी के 10 शेयर्स जो है वो सेल करवा दिए या फिर 100 शेयर्स या डिबेंचर्स उन्होंने सेल कराने का वर्क कर लिया, तो उनको कमीशन देती है कंपनीज, जैसे 2% और 6% और 4% कमीशन उनको प्रोवाइड करती है, ठीक है. तो अंडरराइटर्स जो होते हैं न्यू इशू या फिर प्राइमरीली जो मार्केट होती है उनमें वर्क करते हैं और शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू कराते हैं. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन. Next point is distribution. This is concerned with the sale of the securities to ultimate investors. जो investors होते हैं उनको distribution का जो work होता है वो भी primarily market का होता है. The work is done with the help of the brokers. जो work किया जाता है underwriters के through किया जाता है. जैसे जो brokers होते हैं, जो managers to issue and agents who maintain regular and direct contact with the ultimate investors. जो कि क्या करते हैं, मैनेजर्स की तरह, ब्रोकर्स की तरह वर्क करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिक्योरिटीज. नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इशूइंग न्यू सिक्योरिटीज और प्राइमरली मार्केट. ठीक है, कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि एक इशूइंग न्यू सिक्योरिटीज को हेल्पफुल होते हैं? मेथड्स कौन से इशू किए जाते हैं न्यू सिक्योरिटीज के लिए? प्राइमरली मार्केट में फर्स्ट वन इज public issue through the prospectus. Next one is offer for the sale, private placement, right issue, bonus issue, and book building. So these are the main prospectus or main methods of issuing new securities. First one is the public issue. Public issue means जो भी हम पब्लिक को इशू करते हैं थ्रू द प्रोस्पेक्टस के थ्रू. ठीक है, प्रोस्पेक्टस सभी को पता है क्या होता है.
जो कंपनी के प्रोस्पेक्टस होते हैं, कितने शेयर्स कंपनी इशू करती है, कितना कंपनी का कैपिटल है, कितने उसके शेयर्स वो इशू कर रही है, कितने डिबेंचर्स इशू कर रही है, कितना वो पेड अप कैपिटल यूज कर रही है, तो कंपनी के कितने डायरेक्टर्स हैं, कितने मैनेजर्स वर्क कर रहे हैं, कितने सीईओ वर्क कर रहे हैं, तो दीज आर नोन एज द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में ये सारी की सारी चीजें मेंशन होती हैं। Public issue through prospectus is the most popular method of raising funds by the public limited companies. ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है और उसके थ्रू पब्लिक इशू करती है। The involvement inviting subscription for the public issue through advertising an issue of the prospectus, that is known as the public issue. SEBI guidelines for the issue of the shares to the public, सेबी की कुछ गाइडलाइंसेस होती हैं, उन गाइडलाइंसेस को फॉलो किया जाता है टू द पब्लिक इशू के लिए। सेबी गाइडलाइंसेस कौन कौन सी सेबी गाइडलाइंसेस होती हैं जिन्हें इशू किया जाता है पब्लिक इशू के लिए? फर्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ द मर्चेंट बैंकर्स। जो अपॉइंटमेंट किया जाता है मर्चेंट बैंकर्स का, द कंपनी विल हैव टू अपॉइंट बैंकर्स टू मैनेज द इशू विच एक्ट एज द लीड मैनेजर। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द रजिस्ट्रार टू द इशू, द कंपनी मस्ट अपॉइंट, द कंपनी इशू करती है, मस्ट अपॉइंट अ रजिस्ट्रार, अपॉइंट करती है एक रजिस्ट्रार को, टू द इशू हु कलेक्ट एप्लीकेशंस from the investors and keep record about money received from them, that is known as the appointment of the registrar to the issue. ठीक है, तो रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है फॉर द इशू ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर्स और द इशू ऑफ द सिक्योरिटीज इन अ न्यू मार्केट। नेक्स्ट वन इज पार्टली एंड पेड शेयर्स टू बी मेड फुली पेड। ठीक है, बिफोर न्यू शेयर्स आर इशू, जब हम न्यू सिक्योरिटीज को इशू करते हैं या फिर न्यू शेयर्स को इशू करते हैं, द कंपनी शुड मेक इट्स पार्टली पेड शेयर्स एज ए फुली पेड अप। If there are any shares on which calls have been received, they should be forfeited. Okay, that is known as the partly paid share to be made fully paid. नो इशू इफ कंपनी प्रोहिबिटेड बाय द सेबी। ठीक है, तो कोई भी इशू नहीं होता अगर कंपनी प्रोहिबिशन कोई प्रोहिबिटेड हो जाती है सेबी के थ्रू। द कंपनी शैल हैव नॉट मेक public issue where it has been prohibited by the SEBI। अगर सेबी के थ्रू कोई प्रोहिबिशन है कंपनी को, तो उस टाइम पे कंपनी जो है वो प्रोहिबिटेड करती है सेबी के थ्रू, और उस टाइम पर कोई भी न्यू सिक्योरिटीज को वो इशू नहीं कर सकती है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट दैट वन इज द फिफ्थ पॉइंट, फेलिंग ऑफ द ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस विद द सेबी। Copies of the draft offer document prospectus shall be filed with the SEBI at least 21 days before filing the prospectus with the concerned registrar of the company. Next one is formalities to be completed by the merchant bankers. Merchant bankers के through कुछ formalities complete की जाती हैं. That one is filing prospectus with the stock exchange. While filing draft documents with the SEBI, the merchant bankers will also have to file 25 copies of the draft often documents with the stock exchange. Next one is, that is the second point, make copies of the draft offer documents available to the public. उसके बाद आपका जो सेवेंथ पॉइंट आता है वो आता है कैरिंग आउट चार्जेस suggested by the SEBIs. The company shall carry out the charges suggested by the SEBI. तो जो कंपनी होती है वो क्या करती है, जितने भी चार्जेस, कंपनी शैल कैरीड आउट द चार्जेस सजेस्टेड बाय द सेबी, सेबी के थ्रू जितने चार्जेस होते हैं उनको सजेस्ट करती है बिफोर फिलिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस को फिल करने से पहले। उसके बाद में आता है एट्थ पॉइंट, that is the dematerialization of the securities. The company shall entered into agreement with all depositories for the dematerialization of the securities. The investor shall have an option
to receive allotment of the securities through any depositories. Next, that one is the ninth point, exemptions from the eligibility norms. कुछ नॉर्म्स को फॉलो करती है कंपनीज जब भी वो न्यू सिक्योरिटीज को न्यू मार्केट में अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करती है. एग्लिजिबिलिटी जो नॉर्म होते हैं ऑफ द मेकिंग अ पब्लिक इशू शैल हैव टू बी applicable in the case of banking companies. Next, that one is the 10th point, issue through book building if net worth is of the listed companies increasing by the 5 times. अगर कोई भी listed companies हैं, ठीक है, a listed company is free to make a public issue but its net worth becomes more than the 5 times the net worth prior to the issue. Next one is demoralization of the shares. Shares shall not be issued in a demoralization in the chemical of the rupees and decimals of the rupees at any time. ठीक है, that is known as the demoralization of the share. Next one is minimum number of shares to be applied. ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने अप्लाइड हुए हैं. द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स फॉर विच एप्लीकेशन शैल बी अलाउड टू बी मेड हैव बीन फिक्स्ड एट 200 शेयर्स. ठीक है, तो 200 पर शेयर्स, दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अप्लाइड. नेक्स्ट वन इज द एप्लीकेशन मनी 25% ऑफ द issue price